till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a Hello friends, this is Saubhagya and you are watching Road to Success. So this video is about practical problems and applications. So we have learned set theory in great detail and we have also learned how to solve the properties in set theory. In this video I will first complete the answer or the problem that I have left in the part 7 of set theory and then begin with the practical problems that we deal in set theory. So let's get started. So we had to prove so this is the RHS of that problem and we have to now prove that this RHS is also a subset of the LHS. So we will now, just like we know the steps, we will say that let X be any element of A minus B union A minus C. Then we will write X belongs to A minus B and X belongs to A minus C. Okay, we generally write OR in place of AND in this case. So keep that in mind, because here different sets are working on. We are working on difference of sets, so the value of the sign's value also changes in these questions. So on further deducting, we will get X belongs to A and X doesn't belongs to B, because here A set comes forward and B set comes afterwards the difference symbol. So X belongs to A and X doesn't belongs to B, bracket, or then bracket, second bracket starts, X belongs to A and X doesn't belongs to C. Now we will do a little bit of manipulation in which we will take X belongs to A common from both the brackets. So we will get X belongs to A and then bracket starts. What is left? X doesn't belongs to B, or X doesn't belongs to C. Okay, so now we will bring back the symbols and write it as X belongs to A minus B intersection C. So here we have proved the right hand side is subset of left hand side. So we can say that A minus B intersection C is equal to A minus B union A minus C. So this was the practice problem that I gave to you to solve at home. I hope you understand it. I hope you have solved it already. If not, then I hope you can understand it from this. So now let's get back to the main topic of today. So here are the basic formulas which we will use in application of sets. So first formula says that if A and B are finite sets and A intersection B is null, that means A and B के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, और जब A और B के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं होता तो क्या होते हैं वो, तब वो डिसजॉइंट सेट्स होते हैं. सो दैट मीन्स इन अदर वर्ड्स दे आर सेइंग दैट इफ A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स, तब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. देखिए n ये क्या है, कार्डिनल नंबर का हमारा फॉर्मूला था. n रिप्रेजेंट्स कार्डिनल नंबर. कार्डिनल मतलब क्या कि कितने एलिमेंट्स इस सेट में, दैट तो the number of elements in this set is equal to number of elements in A and number of elements in B. ठीक है, which is very common sense considering कि A intersection B null है और A और B disjoint है.
सिंपल है। सेकेंड वाला केस थोड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें क्या है कि जब ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स और जब ए इंटरसेक्शन बी नल ना हो, जब ए इंटरसेक्शन बी एग्जिस्ट करे, तब ये फॉर्मूला चलता है दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन का सिंबल यहाँ पे आ जाएगा, तो हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखेंगे। इसको मैं यहाँ पे एक बार अच्छे से लिख देता हूँ एक बार, ताकि आपको दिखे अच्छे से। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। ये हमने जस्ट ये फॉर्मूला लगाया है, इसको एक सेट 1 माना है, इसको सेट 2 माना है, ठीक है, और यूनियन का फॉर्मूला लगाया है। अब इसको हम और ओपन अप करें तो देखिए क्या होता है। हमने अब इसका यूनियन का खोलना है, तो देखिए कैसे क्या खुलेगा। नंबर ऑफ ए प्लस इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, और ये इंटरसेक्शन में चेंज होगा, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। साथ में ये माइनस का साथ में चिपक जाएगा, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। अब ये क्या है, इसको हम कैसे बाइफरकेट करें? इसको खोलने के लिए हम क्या लगाएंगे? यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जब हम क्या होगा, क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा हमको, यूनियन, अभी एन नहीं लगाते हैं, अभी सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझते हैं। ये क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। जब ये हमने समझ लिया तो फिर अब हम इस पे हम अब लगाएंगे अपना जो ये इक्वेशन का हमारा था, जो हमने लगाया था ना, ए यूनियन बी की प्रॉपर्टी, अब वो हम इस पे लगाएंगे, ए यूनियन बी की प्रॉपर्टी, ठीक है, जो हमने सेकंड फॉर्मूला सीखा है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी will give us number of elements in A intersection B plus number of elements in A intersection C minus number of elements in, अब ये देखिए पहला सेट A intersection B, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता था? हमारा क्या होता था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? ए इंटरसेक्शन बी होता था, तो ये ए हो गया अभी हमारा, ये हमारा ए है सिर्फ, फिर इंटरसेक्शन और ये बी है हमारा, तो बी लिख दिया हमने। आई नो इट्स अ लॉट टू टेक टू सॉल्विंग दिस। सो इसको अब हमने जब ऐसे लिख दिया है, सो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए एक्चुअल में ये क्या कह रहा है? ए और बी का कॉमन और ए और सी का कॉमन और इन दोनों के कॉमन का कॉमन, तो हम इसको सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं ए बी और सी का कॉमन, ठीक है। कॉमन सेंस से अगर हम समझें तो ये ए बी और सी का कॉमन पूछ रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको सिंपली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हैं। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और जो ये हमने सॉल्व किया था, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ विद पेंसिल ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, और ये देखिए हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, सॉरी। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं एक ही जगह में लाऊंगा, क्योंकि देखिए ये इक्वेशन मुझे क्या बताती है? मुझे ये इसकी प्रॉपर्टी बताती है। जब मैं ये इक्वेशन इसके अंदर पुट करूंगा
तो मुझे मेरा फॉर्मूला मिल जाएगा। सो मैं अभी करके दिखाता हूँ। सो दीज वर माई फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। तो जब मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, चाहते क्या थे हम कि हमें मिले A यूनियन B यूनियन C का फॉर्मूला। तो उसकी फर्स्ट पार्ट तो ये थी, तो ये मैं लिख लेता हूँ जहाँ तक मेरे को आता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटरसेक्शन C। और ये माइनस का साइन के अंदर अब क्या आएगा, ये इसकी वैल्यू हमें सेकेंड इक्वेशन बताता है पूरा। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये इसकी वैल्यू है, तो ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल दूंगा। बाहर ब्रैकेट में के बाहर माइनस का साइन है, तो ये मैं लिख देता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इक्वेशन C माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब जब मैं ये माइनस का ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस के साइन से ये दो माइनस के हो जाएंगे और ये हमारा प्लस का साइन हो जाएगा, और हमको हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा जो कि है A यूनियन B यूनियन C is equal to number of elements in A, number of elements in B, number of elements in C minus number of elements in B intersection C minus number of elements in A intersection B minus number of elements in A intersection C minus, ये देखो माइनस माइनस थे तो ये number of elements in A intersection B intersection C. So this is the proof of third formula. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये प्रूफ। आई नो इट्स अ लिटिल बिट लेंथी और थोड़ा सा फर्स्ट सेकेंड टाइम में जब आप ट्राई करेंगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप ट्राई करेंगे इसको, जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप इसमें बेटरमेंट आप बहुत इसमें अपनी माहिरता जल्दी हासिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा जो 3 फॉर्मूले जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं वाइल डूइंग द एप्लीकेशंस ऑफ सेट्स, जिसको हम अगर मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन लगा जो आ सकता है पेपर में तो मैं वो डिस्कस करूँगा, नहीं तो ये 3 बड़े बड़े फॉर्मूले बहुत हैं। इन 3 फॉर्मूलों से आप एप्लीकेशन ऑफ सेट्स के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम वी विल डू द रियल क्वेश्चंस, नॉट जस्ट द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। तो एप्लीकेशन हेडिंग इसकी ज़रूरत थी इस वीडियो की, लेकिन इसमें वीडियो में आई डोंट थिंक कि अब टाइम बचा है एप्लीकेशंस करने का। सो नेक्स्ट टाइम वी विल डू द एप्लीकेशंस, द रियल क्वेश्चंस जो कि रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एंड दे विल गिव यू अ ग्लिम्स कि सेट थ्योरी का कितने फ़ायदे हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ like this video, please hit the like button and please share it with your friends and do subscribe to my channel Road to Success. Thank you and bye bye. टाइम देखिए क्या होता है, n of A intersection B union A intersection C will give us number of elements in A intersection B plus number of elements in A intersection C minus number of elements in, अब ये देखिए पहला सेट A इंटरसेक्शन B, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता था हमारा क्या होता था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A इंटरसेक्शन B होता था, तो ये A हो गया अभी हमारा, ये हमारा A है सिर्फ, फिर इंटरसेक्शन और ये B है हमारा, तो B लिख दिया हमने। I know it's a lot to take, but we are just very close to solving this. So इसको अब हमने जब ऐसे लिख दिया है, so इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए एक्चुअल में ये क्या कह रहा है, A और B का कॉमन और A और C का कॉमन और इन दोनों के कॉमन का कॉमन, तो हम इसको सिंपल वर्ड्स में कह देते हैं A B और C का कॉमन। ठीक है,
कॉमन सेंस से अगर हम समझें तो ये ए बी और सी का कॉमन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, हम इसको सिंपली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी लिख सकते हैं। सो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और जो ये हमने सॉल्व किया था पूरा, ये जो हमारी थी पूरी इक्वेशन, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ विद पेंसिल ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और ये देखिए हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, सॉरी। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं एक ही जगह में लाऊंगा, क्योंकि देखिए ये इक्वेशन मुझे क्या बताती है, मुझे ये इसकी प्रॉपर्टी बताती है। जब मैं ये इक्वेशन इसके अंदर पुट करूंगा तो मुझे मेरा फॉर्मूला मिल जाएगा। सो मैं अभी करके दिखाता हूँ। सो दीज वर माई फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब मैं ऐड करूँगा, ठीक है, जब मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, चाहते क्या थे हम कि हमें मिले ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला। तो उसकी फर्स्ट पार्ट तो ये थी, तो ये मैं लिख लेता हूँ जहाँ तक मेरे को आता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। और ये माइनस का साइन के अंदर अब क्या आएगा, ये इसकी वैल्यू हमें सेकेंड इक्वेशन बताता है पूरा। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये इसकी वैल्यू है, तो ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर डाल दूंगा। बाहर ब्रैकेट में के बाहर माइनस का साइन है, तो ये मैं लिख देता हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब जब मैं ये माइनस का ब्रैकेट खोलूँगा तो माइनस के साइन से ये दो माइनस के हो जाएंगे और ये हमारा प्लस का साइन हो जाएगा, और हमको हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा जो कि है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी माइनस, ये देखो माइनस माइनस थे तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये प्रूफ। आई नो इट्स अ लिटिल बिट लेंथी और थोड़ा सा फर्स्ट सेकेंड टाइम में जब आप ट्राई करेंगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप ट्राई करेंगे इसको, जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप इसमें बेटरमेंट आप बहुत इसमें अपनी माहिरता जल्दी हासिल कर लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा जो 3 फॉर्मूले जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं वाइल डूइंग द एप्लीकेशंस ऑफ सेट्स। एक और फॉर्मूला है जो एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, जिसको हम अगर मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन लगा जो आ सकता है पेपर में तो मैं वो डिस्कस करूँगा, नहीं तो ये 3 बड़े बड़े फॉर्मूले बहुत हैं। इन 3 फॉर्मूलों से आप एप्लीकेशन ऑफ सेट्स के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम वी विल डू द रियल क्वेश्चंस, नॉट जस्ट द फॉर्मूलाज रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। तो एप्लीकेशन हेडिंग इसकी ज़रूरत थी इस वीडियो की, लेकिन इसमें वीडियो में आई डोंट थिंक कि अब टाइम बचा है एप्लीकेशंस करने का। सो नेक्स्ट टाइम वी विल डू द एप्लीकेशंस, द रियल क्वेश्चंस जो कि रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एंड दे विल गिव यू अ ग्लिम्स कि सेट थ्योरी का कितने फ़ायदे हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, and if you like this video, please like this video, please hit the like button,
and please share it with your friends and do subscribe to my channel Road to Success. Thank you and bye bye. Time.